everyone, Mrs. Minakshi here. Today's video is very special for the students of 10th standard because today we are going to discuss the blueprint of social science paper in class 10. In this video, we will discuss about the question paper design, paper pattern and the typology of questions. So here we go. तो आइए चलते हैं सोशल साइंस का ब्लूप्रिंट। जो रिटन एग्जाम आपका फाइनल एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा। जैसा कि आप जानते हैं सोशल साइंस में 4 सेगमेंट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। Each segment has its own one book, so there are 4 books you can see here। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो each book is of 20 marks. So this way all the 4 books will be of 80 marks. अगर अभी हम क्वेश्चन पेपर डिजाइन की बात करें तो 35% क्वेश्चन पेपर आपका रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस होगा। जब रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो इट इज लाइक कि प्रीवियसली लर्न मटेरियल, योर नॉलेज and how you are going to demonstrate your understanding. 18% weightage is given to applying whatever knowledge you have, how to apply your acquired knowledge. So application based questions 18% honge. Then third segment will be 40% weightage of formulating and evaluating the questions. Then how you validate the ideas and how you evaluate, justify the statement, and this kind of questions will be asked under this segment. And 6% will test the map skills. Now we will discuss which kind of questions will be under these segments. So जैसा कि हम देख रहे हैं remembering में all WH questions like what, when, where, which, who, why, find out, define, label और list, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अंडरस्टैंडिंग में लाइक क्लासिफाई द थिंग्स, कंपैरिजन, डेमोन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन। सो नेक्स्ट कम्स द एप्लीकेशन। तो उसमें जैसा कि मैंने पहले कहा आपकी एक्वायर्ड नॉलेज को आप कैसे अप्लाई करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लाइक एक्सपेरिमेंट विद, डेवलप और कंस्ट्रक्ट समथिंग, आइडेंटिफाई और सॉल्व इट सिंपली। देन एनालाइजिंग और इवेल्युएशन की बात आती है तो इसमें जनरली हॉट्स पूछे जाते हैं। दे आर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें आपको कुछ एनालिसिस करना होता है। यू नीड टू गिव सम सजेशन, यू नीड टू एनालाइज द स्टेटमेंट, इवेल्युएट, इंटरप्रिटेशन, डिस्टिंग्विश, elaborate, create, design, discuss, justify the statement, give your suggestion to in the support of this statement. Any statement will be taken directly from the textbook and you need to justify that. And then answer can be open-ended. You may support the statement or you agree to that or you disagree. So this kind of questions will be asked under evaluation and formulation. So now let's go towards the new paper pattern. In this, it is done only for this year 2021. What are the changes? So maximum marks will be 80, time 3 hours. There will be 5 sections A, B, C, D and E. Number of questions will be 32. All questions will be compulsory and some internal choices will be given. So अगर हम section A की बात करें तो there will be 16 questions. They all will be objective type, VSA, very short answer questions, and they will be 16 in number, 1 marks each. Section B, 17 to 22 number, 3 marks each, 6 questions will be asked and word limit should be 80 words. Ideally speaking, you should not go beyond 80 words और उससे छोटा भी नहीं लिखना है। Then section C, question number 23 to 26, 4 marks each, and there will be 4 questions. Generally, each question will be taken from one of the book. From all the 4 books, 4 questions will be asked. They will be source-based. Some comprehension type extract will be taken directly from the textbook, and out of that, some multiple choice questions will be asked, and you need to answer. So 4 mark each question will be there. Section D, question number 27 to 31,
5 marks each, 5 questions will be asked, and they should not go beyond 120 words, but they are descriptive one. Then question E, there will be only one question, 32, that will be map skill, and 2 items will be asked from history and 3 from the geography. So totally it will be having 5 marks, and internal choices may be given. Then 2 things will be asked for identification, and 3 things may be asked for labeling and location. Now the typology of questions. Suppose section A is there. As I asked, there will be 16 questions carrying 1 marks each. तो वो question होंगे किस type के? All 16 questions में कुछ MCQs होंगे, कुछ fill in the blanks होंगे, कुछ डेटा एनालिसिस रिलेटेड कि आपको एक टेबल दे दी गई है, उसको आपको इंटरप्रेट करना है, एनालिसिस करना है उसका. देन असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे कि सम स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, one statement is right or second is right or not, first is right, second is wrong, both are right or both are wrong. So this kind of assertion and reasoning, then reason may be asked. Then read the statement and answer. Sometimes statement is given and you need to answer. So इस तरह के only very short answer, VSA type, in short, you need to describe only for 1 mark. Then section B, 6 question will be there and 3 marks each. वो किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे? अगर हम टाइपोलॉजी की बात करें तो उसमें गिव रीजंस हो सकते हैं, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन और एग्जामिन द स्टेटमेंट. को स्टेटमेंट दिया उसको आपको इलस्ट्रेट करना है, उसको आपको इलेबोरेट करना है. और सम सिचुएशनल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, कोई सिचुएशन दी है तो उसको आप कैसे डील करेंगे. Then comes the section C, question number 23 to 26. As I told you, 4 क्वेश्चन होंगे, हर बुक में से एक क्वेश्चन लिया जाएगा, कोई एक्सट्रैक्ट दिया होगा और उसके बेस पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो आपको आंसर करने होंगे. तो दे आर सोर्स बेस्ड. रीड द सोर्स, एमसीक्यूज में से निकालना है, रीड द टेक्स्ट एंड रीड द एक्सट्रैक्ट. ये डायरेक्टली आपकी टेक्स्ट बुक में से पूछे जाएंगे. सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 27 to 31, 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. वो क्वेश्चन जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, एनालिसिस और इवैल्यूएशन बेस्ड होंगे, फॉर्मुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, लाइक जस्टिफाई द स्टेटमेंट, एग्जामिन द स्टेटमेंट, इवैल्यूएट और एनालाइज द स्टेटमेंट और सजेस्टिव मेजर. सम सिचुएशन इज गिवन, सिचुएशनल क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप इसमें सजेस्ट करो हाउ इट शुड बी और गिव योर व्यूज, गिव योर आइडियाज. और एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी asked under 5 marks. Section E, only one question will be there. The last 32nd question, it will be carrying 5 marks. इसमें map skill based question होगा, इसमें identification of places और location and labeling will be asked. अभी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. 80 मार्क्स का पेपर इन 4 टेक्स्ट बुक में कैसे डिवाइडेड होगा? जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, हर टेक्स्ट बुक 20 मार्क्स की होगी, लेकिन अभी उस 20 मार्क्स में कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो डिटेल में आपको यहां डिस्कस करना चाहूंगी. हिस्ट्री में 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ये सब एनालिसिस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस. डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा सीबीएसई ने हमें एक सैंपल क्वेश्चन पेपर इशू किया है, उसके बेसिस पर मैंने ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है कि 20 मार्क्स हिस्ट्री में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे. तो 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सपोज आपके 2 चैप्टर है तो आप मान लीजिए दोनों चैप्टर में से एक 3 मार्क का क्वेश्चन आने ही वाला है. 4 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क का भी 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा. मैप उसमें 2 मार्क्स का होगा. जनरली इट कम्स फॉर आइडेंटिफिकेशन. अब ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें 1 मार्क के 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. 1 मार्क के 5 क्वेश्चंस, 3 मार्क का एक ही क्वेश्चन पूछा है क्योंकि 3 मार्क का मैप भी ज्योग्राफी में से ही पूछा जाएगा. देन 4 मार्क का 1 क्वेश्चन और 5 मार्क का भी 1 क्वेश्चन ज्योग्राफी में से पूछा जाएगा. नाउ यू कैन प्लान वेरी वेल कि ज्योग्राफी में टोटल मेरे कितने चैप्टर हैं, उसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस चैप्टर में ज्यादा बनते हैं, तो 5 मार्क का डेफिनेटली उस चैप्टर में से पूछा जाएगा. देन 3 मार्क्स का मैप होगा. देन मैप का पूरा पोर्शन सिलेबस ऑलरेडी मेरी एक वीडियो में पहले ही डिस्कस कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक शेयर कर दूंगी. यू कैन चेक द मैप कंटेंट अगेन
कि how many chapters we are having map content, which will be asked in the final exam. Then political science में 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 मार्क का 1, 4 मार्क का 1, और पॉलिटिकल साइंस में से 5 मार्क के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल होता है 20 मार्क्स. इकोनॉमिक्स में 1 मार्क के 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस सैंपल पेपर में, और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 4 मार्क का 1 क्वेश्चन, अगेन 5 मार्क का 1 क्वेश्चन, और देयर इज नो मैप कंटेंट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, सो हियर इट गोज 20 मार्क्स. तो इस तरह से आपके 32 टोटल क्वेश्चंस होंगे और 80 मार्क्स, और हर बुक 20 मार्क्स की होगी. I hope this will help you a lot in the preparation. So wish you all the best. I hope social science की प्रिपरेशन करने में आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे. अगर आप इन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए 100 on 100 स्कोर करना और रिटन एग्जाम में 80 on 80 स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा. So I will come back again with more videos like how to score centum in social science and what is the importance of internal marks. तो 20 internal marks आप 20 on 20 कैसे ले पाएंगे? So I'll come back again. Stay tuned. Thank you very much.